Good morning, everybody. Myself, Komal Sahani, Senior Lecturer, CDDM. आज हम कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम सिलेबस को डिटेल में जानेंगे और आज सबसे पहला मेरा सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ फैशन, कोड CD 303, जिसमें थ्योरी एंड ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि थ्योरी ऑफ फैशन में हम क्या पढ़ेंगे और उसका कोर्स डिस्क्रिप्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगी। इन कोर्स डिस्क्रिप्शन we're going to get through what the syllabus says about in a brief introduction. The fashion business is exciting, stimulating, fascinating because it is also ever changing. We have developed fashion merchandising, an introduction to provide a structured learning process to help students discover the innovation and challenges of today's fashion business. Fashion merchandising, an introduction which reflects the survey nature of an introductory course by covering all the interdependent levels of the fashion business so that the students can be made aware of the many careers in fashion. The concept and the practice developed are equally applicable to the merchandising of all fashion influenced goods. Although the text treats them largely in terms of men's, women's, and children's apparel and accessories. To keep current in the most recent happenings in the fashion business, each chapter concludes with a discussion of the latest developments and upcoming trends. This provides hundreds of new up-to-date examples being substantially to sharpen its focus on fashion and to allow the space for expanded materials on such as 1. The business of fashion, 2nd. The domestic and foreign markets, 3rd is the impact of technology on each level of fashion, and 4th, the global sourcing that is so important to the internationalization of fashion. The world of fashion is the essential source for students who want to understand the fashion industry, starting with an introduction to the history of fashion and its evolving role within the global marketplace. Each chapter focuses on an aspects of the industry from consumer behavior and fashion trends to textiles, product development, manufacturing, and merchandising. Each chapter has been fully updated to include new informations and updated artwork. Fashion history has been updated to include the current events and an added discussion of portfolio preparation, provided completely coverage of careers in fashion. Unique chapters on the multicultural consumer and outsourcing, fashion design, production and management, plus coverage of important industry trends such as social responsibility, eco-consciousness, social networking reflects the current state of the fashion industry. जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं किसी भी ईयर में, जब आप प्रमोट होते हैं तो हर सब्जेक्ट को यू शुड गो थ्रू इट। आपको हर सब्जेक्ट के बारे में, उसकी डिटेल सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यक है।
तो थ्योरी ऑफ फैशन में हमारे 3 लेक्चर्स है और ट्यूटोरियल 2x2 है, या फिर एवरी वीक 1 ट्यूटोरियल आता है। अब इसमें यही दे रखा है कि इसमें टोटल 9 हमारे यूनिट्स हैं और यहाँ 9 यूनिट के अंदर हमारे कुछ सब टॉपिक्स भी हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि थ्योरी ऑफ फैशन में वो 9 यूनिट्स कौन कौन से हैं और कितने इम्पॉर्टेंट रखते हैं। पहला है फैशन एंड स्टाइल। फैशन एंड स्टाइल में हम फैशन और स्टाइल में हम इसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम फैशन की क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण और कितने प्रकार के फैशन होते हैं। फैशन को डिटेल में पढ़ने के लिए उसके किस तरह से फैशन को बनाया जाता है या किस तरह से वो मार्केट में आता है और किन सिद्धांतों पर वो आधारित होता है, उसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन को जानेंगे। उसके बाद फैशन में किस प्रकार से फैशन का पूर्व अनुमान लगाया जाता है, उसकी तकनीकों और उसकी विधियों के बारे में जानेंगे। सो फैशन फोरकास्टिंग के मेथड्स एंड टेक्निक्स। देन इसका 5th जो टॉपिक है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन ऑन पर्सनालिटी। इसका मतलब है कि हमारी पर्सनालिटी पे फैशन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में हम इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। 2nd यूनिट है जो कि फैशन मर्केंडाइजिंग है। इसमें भी इसके 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स में सबसे पहले हम प्री बाइंग एक्टिविटीज़ के बारे में जानेंगे कि फैशन मर्केंडाइजिंग में जब कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई मर्केंडाइज का निर्माण किया जाता है तो कौन कौन सी बाइंग क्रियाएं यानी कि पूर्व की बाइंग या क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। दूसरे टॉपिक में हम लोकल एंड एक्सपोर्ट मार्केट को एनालाइज करेंगे और इसके बारे में हम ये करते हैं कि हम लोकल मार्केट को भी स्टडी करेंगे और एक्सपोर्ट मार्केट को भी उसमें विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन करेंगे। 3rd टॉपिक में हम प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन पर डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन इन लोकल एंड एक्सपोर्ट मार्केट में हम किस तरह के कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में और किस प्रक्रिया से गुजरते हैं वो हम सारी चीज़ें इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। 4th में हम मर्केंडाइजिंग के स्कोप एंड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। 5th टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल है। तो क्वालिटी कंट्रोल है रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड तक किस तरह से क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3rd यूनिट है हमारा करियर इन फैशन। इसमें हमारे 4 टॉपिक्स हैं। पहला है कि हम जब फैशन फील्ड से में कुछ भी हम कुछ करते हैं तो हम कौन कौन सी फील्ड्स में हम अपना करियर बना सकते हैं। तो जैसे कि फैशन एक्सपर्ट और डिज़ाइनर। 2nd टॉपिक में हम कंसल्टेंट यानी फैशन कंसल्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। 3rd टॉपिक में हम एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड हम करियर्स के बारे में पढ़ेंगे और 4th टॉपिक में हम इंडस्ट्री से संबंधित सारे फैशन करियर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। 4th यूनिट में हमारा आएगा वार्डरोब प्लानिंग, जो कि आपकी एक अलमारी को किस तरह से प्लान आउट किया जाता है या अपने वार्डरोब को जहाँ पे आप क्लोथिंग्स रखते हैं, जो आपकी क्लोथिंग्स का कलेक्शन होता है उसको किस तरह से प्लान आउट किया जाता है वो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। इसके भी 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है हाउ टू सिलेक्ट एंड वेयर द क्लोथ्स। तो इसका मतलब है कि जो भी हम कपड़े खरीदते हैं और हम उनको
वाटर प्लानिंग में जो फर्स्ट टॉपिक है, हाउ टू सिलेक्ट एंड वेयर क्लोथ्स। इसमें हम जब बाज़ार से, मार्केट से जब हम अपने परिधान खरीदते हैं तो उनको किस प्रकार से उनका चयन किया जाए और उन्हीं परिधानों को किस प्रकार से पहना जाता है, ये भी जानकारी इसमें दी जाएगी। इसका सेकंड टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट कलर्स एंड पैटर्न्स। तो आपकी शरीर के अनुसार, यानी कि जो भी मनुष्य का जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, तो कौन से शरीर पे कौन सा रंग सही बैठेगा या पैटर्न होंगे, उनका जो सिलेक्शन होता है वो किस आधार पर किया जाता है, उसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। थर्ड टॉपिक है हमारा टू डेवलप गुड टेस्ट इन क्लोथ्स। यहाँ पर गुड टेस्ट का मतलब है कि आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कितना अच्छा है, जिससे आपका जो क्लोथ्स है वो आप पर कितना सूट करता है, ये इसमें बताया जाएगा। तो गुड टेस्ट को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फोर्थ टॉपिक में हम ड्रेसिंग अकॉर्डिंग टू दी पर्सनालिटी। तो हमारी पर्सनालिटी, सब व्यक्तियों की जो पर्सनालिटी होती है वो बहुत ही भिन्न भिन्न होती है, तो उस पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही हमें ड्रेसेस का सिलेक्शन करना होता है या चयन करना होता है, और वो किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को सूट करेंगी उसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर फिफ्थ टॉपिक पे हम साइकोलॉजी ऑफ कलर्स पढ़ेंगे। इसमें हम रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव जो है वो एक पर्सनालिटी पे किस तरह से पड़ता है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। अब हमारा एक फिफ्थ यूनिट आता है जिसमें हमारा है ब्रीफ नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमारे 5 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है हमारा फैशन ट्रेंड, और दूसरा है हमारा फैशन ट्रेड या ट्रेड फेयर। फैशन ट्रेंड में है कि किस दिशा में फैशन मूव करता है, उसे कहा जाता है फैशन ट्रेंड। जिस दिशा में भी फैशन जब चलता है, द डायरेक्शन इन विच द फैशन मूव्स इज नोन एज फैशन ट्रेंड। तो उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे और वो किस तरह से मूव करता है, कभी उसकी गति तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है, और वो कैसे होती है और कभी कभी कैसे वो अवरुद्ध होती है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और सेकंड जो टॉपिक है हमारा फैशन ट्रेड, फैशन फेयर या फिर ट्रेड फेयर्स। इसके मतलब है फैशन मेला। तो फैशन मेला जो है वो किस तरह से लगाया जाता है और उसको लगाने के लिए किन किन प्रक्रियाएं, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और कैसे लगाया जाता है, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक में हम फैशन शो के बारे में जानेंगे कि फैशन शोज़ जिससे आप पहले से ही फेमिलियर हैं और आप जानते हैं, बट इस फैशन शो को किस तरह से उसकी जो बैक स्टेज में जितने भी कार्य किए जाते हैं और किस तरह से डिज़ाइनर्स इसके लिए उनका रोल क्या होता है और कितने लोग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, उनके बारे में भी हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फोर्थ टॉपिक में हमारा इसी यूनिट में है बुटीक। बुटीक में हम पढ़ेंगे कि कैसे बुटीक को सेटअप किया जाता है और इसका इतिहास क्या है और कौन कौन से फेमस बुटीक्स जो हैं, जो कि फेमस हैं अपने काम के लिए या अपने प्रोडक्ट्स के लिए, उनके बारे में भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसका भी हमें एक विस्तार में जानकारी प्राप्त होगी। फिफ्थ यूनिट है हमारा, फिफ्थ यूनिट में हमारे 5 टॉपिक्स हैं जिसमें हम ब्रीफ नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग में हम इन 5 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला है फैशन ट्रेंड्स। फैशन ट्रेंड्स का मतलब है
द डायरेक्शन इन विच द फैशन इज मूविंग। अब फैशन की गति को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसे गतिमान बनाए रखते हैं, जैसे कि उन्हें कहते हैं एक्सेलरेटिंग फैक्टर्स। और वो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। बट कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो फैशन की गति को धीमा कर देते हैं या उसे अवरुद्ध कर देते हैं, तो उन्हें हम रिटार्डिंग फैक्टर्स कहेंगे। तो इसमें हम क्या है कि इनको दोनों फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे और हम उसके प्रचलन के बारे में भी हम जानेंगे। इसका जो सेकंड टॉपिक है वो है फैशन फेयर या ट्रेड फेयर। जैसे कि आपको फेयर से पता ही है कि फेयर का अर्थ है मेला। तो फैशन और से संबंधित जो भी मेले लगाए जाते हैं उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि उसको लगाने वाले कौन होते हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कितने दिन के लिए लगाया जाता है, कहाँ पे इसे लगाया जा सकता है, उसकी प्लेस यानी कि वेन्यू क्या होगा, और कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं इसे देखने के लिए। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। थर्ड टॉपिक में फैशन शो है। तो फैशन का जो शो है वो किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है, बैक स्टेज में कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, डिज़ाइनर से लेके जो पीछे जो भी है लाइक मीडियाज़ हैं एंड सेलिब्रिटीज़ हैं या जो भी उसके गेस्ट आते हैं, उनके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। फोर्थ टॉपिक है बुटीक। बुटीक में आपको ये बताया जाएगा कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ बुटीक और हु वाज द फर्स्ट पर्सन, बुटीक में कौन कौन सी चीज़ों को रखा जाता है और क्या इसमें डिस्प्ले किया जाता है, बाकी की ये नॉर्मल शॉप से किस तरह से अलग होती है। ये सब चीज़ें जो हैं ये इस टॉपिक में आपको समझाया जाएगा। फिफ्थ टॉपिक है हमारा जिसे हम गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि परिधान की एक उत्पादन इकाई यानी परिधान उत्पादन इकाई है, यानी जीपीयू भी हम इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में बोलते हैं। तो गारमेंट प्रोडक्शन यूनिट में किस तरह से गारमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। और हर जो रूम है, जो भी उसका यूनिट है, उसके भी जो सब टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। फिर हमारा आता है सिक्स्थ यूनिट जिसमें हमारा लीडर्स ऑफ फैशन है। लीडर्स ऑफ फैशन है जो फैशन को लीड करते हैं या उसको कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं। जैसा कि इसमें भी हमारे 4 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिज़ाइनर। तो हम डिज़ाइनर्स में हम डिज़ाइनर्स कौन होते हैं, डिज़ाइनर्स की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, और हम डिज़ाइनर के प्रकार भी पढ़ेंगे। लाइक हम लोग जैसे 3 टाइप्स के डिज़ाइनर्स पढ़ेंगे और ये इसके इस फर्स्ट टॉपिक के जो सब टॉपिक्स होंगे उसमें 3 हैं, हाई फैशन डिज़ाइनर, स्टाइलिश डिज़ाइनर एंड फ्रीलांस डिज़ाइनर। इनके काम क्या होते हैं और ये कैसे काम अपना करते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इसका सेकंड जो टॉपिक है हमारा उसमें रोल ऑफ डिज़ाइनर है। तो डिज़ाइनर का रोल हर स्टेप में मर्केंडाइजिंग की प्रक्रिया में क्या क्या होता है वो इसमें बताया जाएगा कि डिज़ाइनर कितनी भूमिकाएं अदा करता है और किस किस उसका जो रोल होता है फैशन वर्ल्ड में वो किस प्रकार से वो उसको हैंडल करता है। थर्ड यूनिट में हम इंट्यूशन एंड इनसाइट के बारे में पढ़ेंगे, यानी डिज़ाइनर के को किस प्रकार से इंट्यूशन होता है और उसको किस तरह से इनसाइट की फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स के बारे में, और वो किस तरह से अपने डिज़ाइंस को इन 2 चीज़ों के माध्यम से क्रिएट करता है। फोर्थ टॉपिक में हम डिज़ाइन इंस्पिरेशन के स्रोत
के बारे में जानेंगे, यानी सोर्सेज ऑफ डिज़ाइन इंस्पिरेशन, यानी कि डिज़ाइनर जो है वो अपनी कहाँ से डिज़ाइन से इंस्पायर्ड होता है और कैसे उससे इंस्पायर होकर कोई भी चीज़ को वो डिज़ाइन करता है। 7th यूनिट में हम फैब्रिक डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। फैब्रिक डिज़ाइंस में वस्त्र पर किस प्रकार से डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, और इसमें हमारे 2 टॉपिक्स हैं। पहला है टाइप्स ऑफ मोटिव्स, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के मोटिव्स के बारे में जानकारी लेंगे कि एक वस्त्र के ऊपर हम कितने प्रकार के मोटिव्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिकल, रियलिस्टिक, स्टाइलाइज्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट मोटिव्स होते हैं, और उनको किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको सिंगल मोटिव प्लेसमेंट किस तरह से फैब्रिक डिज़ाइन पे होता है और किस तरह से उसका कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिव्स का प्लेसमेंट किया जाता है, उनके बारे में भी हम पढ़ाई करेंगे। और फिर हमारे गारमेंट कंस्ट्रक्शन में फैब्रिक डिज़ाइन को किस तरह से लिया जाता है और ध्यान रखा जाता है उसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। 8th यूनिट में हमारा है डिज़ाइन फॉर द इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर मेन एंड वुमेन। जैसा कि तात्पर्य है कि प्रत्येक पुरुष और महिला का शरीर विभिन्न प्रकार का, विभिन्न आकार का होता है, और ज़्यादातर जब हम पढ़ते हैं कि एक प्रोपोर्शनेट बॉडी से हमें बता दिया जाता है कि 8 थ्योरी से किस तरह से एक महिला और पुरुष का शरीर होता है। यदि उसमें कोई भी प्रोपोर्शन में कोई भी कमी होती है तो उसको ड्रेस के माध्यम से किस प्रकार से ठीक किया जाता है वो इसमें बताया जाएगा, क्योंकि शरीर पर को बिल्कुल परफेक्ट दिखाने के लिए हम केवल परिधानों के प्रयोग से ही किस तरह से उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं हम। तो इसका मतलब है हम किस तरह से इल्यूजन्स क्रिएट करेंगे, जिसे हम दृष्टि भ्रम भी कहते हैं, और एक तरह से उस पुरुष और महिला जिसकी अगर कोई बॉडी में या शारीरिक कमी होती है उसको बिल्कुल परफेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर मेन एंड वुमेन में करेंगे। जैसे कि अगर यदि पुरुष लंबा है तो उसको नॉर्मल हाइट में लाने के लिए हम कैसे करेंगे, अगर वो पतला है तो उसे थोड़ा सा नॉर्मल वेट में लाने के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के हाथ लंबे हैं, गर्दन लंबी है, और भी बहुत सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो किस तरह से हम उनको थ्रू क्रिएटिंग इल्यूजन्स एंड थ्रू क्लोथ्स हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो इस 8th चैप्टर में हम समझाएंगे। 9th यूनिट है हमारा, जो लास्ट यूनिट है, उसमें कंस्ट्रक्शन फीचर्स टू चेक व्हेन बाइंग। इसमें हमारे 2 टॉपिक्स हैं, जिसमें हम जब भी हम परिधान खरीदने जाते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं कि हम केवल ऊपर से ही परिधान को खरीद लेते हैं, देखकर हम परिधान को खरीद लेते हैं, लेकिन हमें उसके कंस्ट्रक्शन फीचर्स को देखना भी बहुत आवश्यक है। कि कंस्ट्रक्शन फीचर्स से तात्पर्य है कि वो अंदर से जो उसमें धागा लगा है, स्टिच की लेंथ क्या है, कौन सी सीम का प्रयोग किया गया है, क्या वो सिक्योर्ड है या नहीं है, कपड़ा किस तरह का है, तो हम उसमें फाइबर कंटेंट भी देखेंगे, हम फैब्रिक के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, हम सारी फिनिशिंग डिटेल्स को देखेंगे, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखकर किस तरह से एक परिधान को खरीदना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस टॉपिक में प्राप्त होगी। तो इसका जो फर्स्ट है टॉपिक में, इसमें जो है उसमें हम शर्ट, स्पोर्ट्स जैकेट, ट्राउजर्स, स्लैक्स, मेंस सूट, स्पोर्ट कोट एंड चिल्ड्रन गारमेंट्स। तो चिल्ड्रन गारमेंट्स में हमारे सब को इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि फ्रॉम अ न्यू बॉर्न बेबी टू टीनेजर्स। ठीक है, और साथ ही साथ महिलाओं का भी इसमें परिधानों को इसमें महिलाओं के परिधानों को किस प्रकार से खरीदा जाता है और उसके किस तरह से कंस्ट्रक्शन फीचर्स को चेक किया जाता है वो भी देखा जाएगा। बच्चों के परिधानों में हम
सबसे अधिक जैसे कि सेफ्टी फीचर्स और कंफर्ट फीचर्स को और सेल्फ हेल्प फीचर्स को ध्यान में रखते हुए परिधानों को खरीदेंगे, और किस प्रकार से खरीदना चाहिए इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। सिलेबस के नीचे हमेशा कुछ रेफरेंस बुक्स को भी दिया जाता है, और उन रेफरेंस बुक्स को लेकर हम अपनी जो पढ़ाई है उसको और अच्छा बना सकते हैं, और साथ ही साथ इससे हमें और अधिक नॉलेज मिलती है। इन टॉपिक से संबंधित हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।